in the data link design issues, we have started with the error control coding. In the error control coding in the last lecture we have seen it is broadly classified into two categories. या एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं. क्या डिफरेंस है दोनों में? एरर डिटेक्शन में क्या होगा कि वेन एवर द पैकेट रिसीव्ड एट द रिसीवर इट इज एबल टू डिटेक्ट द एरर कि इसमें एरर आया है या नहीं आया. अगर वो एरर आया है तो इट कैन नॉट करेक्ट द एरर. एरर डिटेक्शन में वो एरर को करेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ वो उसको डिटेक्ट कर सकता है कि एरर इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है. Whereas in error correction it can correct the error. So we have seen the various method for error detection, जिसमें हमने last lecture में parity check codes we have studied in the last lecture. In this lecture we are going to study the checksum method. Have you heard this checksum? Yes. While we have studied the OSI reference model, in that we have seen the error control. This is the responsibility of two layers. Which two layers? The first one is the data link layer is responsible for error control. Again the transport layer is again responsible for error control, but the difference is data link layer में जो error control होगा वो उसके लिए method कौन सा यूज होगा? CRC, cyclic redundancy check. Okay, with the help of this method we are controlling the error in data link layer, whereas in the transport layer the error is controlled with the help of checksum method. So we are going to study the checksum method. In this lecture we are going to study the checksum method. So what actually happens into the checksum method, we will take an example and it will be more clear to you. Suppose I have to transmit some packets 7, 11, 12, 6. Okay, 7, 11, 12, 6. These are the packets I have to transmit from the transmitter to the receiver. Then what I will do, instead of sending all these packets, I will add the sum of these packets with this. तो इन सब का sum क्या हो जाएगा? देखो 7, 11 plus 12, 23 plus 7, 30 plus 6, 36. 36 is the sum. 36 is the sum of these packets. Okay. So this is the original information and this is the redundancy. Now this data, this complete data is transmitted from the transmitter to the receiver. At the end of receiver will check whether the data word is matching with the redundancy or not. ठीक है, ये मैसेज इसके सम के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इस सब का सम करेगा और इसके सम के साथ में इस नंबर के साथ में दोनों को मैच करेगा. इफ बोथ आर इक्वल इट विल एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, इफ बोथ आर नॉट इक्वल इट विल डिस्कार्ड द इंफॉर्मेशन. ऐसा एक मेथड होता है checksum में. One more method is followed in the checksum, that instead of sending the sum of that number, it is sending the 7, 11, 12, 6 with its the negative sum is attached with the information. ठीक है, नेगेटिव सम को ऐड करेंगे इंफॉर्मेशन में और क्या करेंगे, इसको ट्रांसमिट कर देंगे रिसीवर साइड पे. This method makes the job of receiver easier. How? When the receiver add all the numbers, the sum should be 0. सबको ऐड करेंगे तो सेम सम क्या आना चाहिए? 0 आता है. अगर 0 आता है मीन्स एरर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. नॉन जीरो सम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एरर इन द इनपुट इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्या होगा? एक तो या पॉजिटिव सम करेंगे, दोनों को ऐड करके कंपेयर करेंगे, या सेकेंड मेथड क्या है कि इसमें सारे पैकेट्स के साथ में उसका निगेटिव सम ऐड करेंगे और सॉरी एक पैकेट एक्स्ट्रा सेंड करेंगे जिसमें उसका निगेटिव सम रहेगा. रिसीवर साइड में सबको ऐड करेंगे. अगर सबका सम 0 आता है मीन्स देयर इज नो एरर इंट्रोड्यूस इन इट. नॉन जीरो सम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एरर. ठीक है, ये व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड? इफ यू ऑब्जर्व द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज here all the input information is of 4 bit. 7 का बाइनरी क्या है? 0 1 1 1. 11 is 1 0 1 1. 12 is 1 1 0 0. 6 is 0 1 1 0. सारी इंफॉर्मेशन हमारी 4 बिट की है. बट अगर 36 को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में तो कैसे होता है? 1 2 4 8 16 16. So 16 okay 32
plus 4 is 36. Remaining all are 0. Means it is of 6 bit information instead of 4 bit. जो सारे पैकेट्स है वो 4 बिट के है, जबकि उसका सम कितने बिट का है? 1 2 3 4 5 6 बिट का है. मीन्स इसके लिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज मोर. फॉर दिस इट विल टेक मोर बैंडविड्थ टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कोडवर्ड है, जो लेंथ ऑफ फ्रैप्सम है, वो द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ बिट्स इज मोर एज कंपेयर टू द अदर पैकेट्स. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विल सेंड विद द हेल्प ऑफ व्रैपसम मेथड. ओके, चेकसम विद द हेल्प ऑफ व्रैपसम मेथड. उसमें क्या होता है देखते हैं. ठीक है, फॉर दैट आई हैव टेकन एग्जाम्पल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्रैपसम मेथड. इसमें क्या होता है, पहले हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को उसके वंस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज 21 ये नंबर है. ठीक है, ये नंबर 5 बिट का है, बट इस नंबर को हमको व्रैपसम मेथड से 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे? पहले 21 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे. 1 2 4 8 16. 16 plus 4 is 20 plus 1 is 21. ओके, दिस इज अ 5 बिट नंबर. अभी हमको इसको 4 में कन्वर्ट करना है, तो ये 4 बिट एज इट इज रखेंगे, इस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus 1 0, कैरी इज जनरेटेड. 1 plus 0 is 1, here 1 0. ओके, एंड विल टेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट. इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वो क्या आएगा? 1 0 0 1. ओके, दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. ऐसे हम किसी भी नंबर का व्रैपसम फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स इससे क्या होगा कि जो डेटा हम यहाँ पे 6 बिट में ट्रांसमिट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस 6 बिट वी विल ऐड दिस नंबर इन विद द हेल्प ऑफ व्रैपसम मेथड. हम इसको 4 बिट में कन्वर्ट करके सेंड करेंगे. ठीक है, इसको पहले 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंड करेंगे. चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि व्रैपसम मेथड से चेकसम कैसे हम सेंड कर सकते हैं. ठीक है, चलो देखो, ये डिफरेंट पैकेट्स आर देयर. 7 11 12 0 6. कितने पैकेट्स है? 1 2 3 4 5. ये 5 पैकेट्स है. इसका सम कितना है? 36 है. लेकिन 36 को रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी नंबर क्या लगता है? ये लगता है 1 0 0 1 0 0. राइट डाउन once again. It is 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0. Sorry, 36 is 1 0 0 1 0 0. Okay, this is 36. Now with the help of व्रैपसम मेथड अगर हम यूज करते हैं, तो व्रैपसम में क्या हो जाएगा? ये जो 1 0 0 1 0 0 है, इसमें 4 बिट एज इट इज रहेंगे. इन दोनों को हमको व्रैप करके इसमें ऐड करना पड़ेगा. दैट इज 1 0. ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? एडिशन विल बी 0 1 1 0. ठीक है, 0 1 1 0. तो व्रैपसम कितना हो गया? 6 आ गया. देखो 0 1 1 0 इज नथिंग बट 6. ठीक है, 6 इज द व्रैपसम. नाउ इसका चेकसम क्या रहेगा? इसका चेकसम रहेगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी नंबर है उसका निगेटिव, उसका अपोजिट नंबर, जो भी यहाँ 0 है तो उसका 1 1 है तो 0, उसको अपोजिट करेंगे तो वो उसका वंस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रहेगा. 1 0 0 1. दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म विच रिप्रेजेंट्स द डेसिमल 9. ठीक है, तो इसका जो चेकसम है वो 9 है. तो अभी हम इस डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो विल सेंड ऑल दिस पैकेट 1 में 7 है, 11 12 0 6, और इसके साथ में ऐड कर देंगे चेकसम. चेकसम क्या है? 9. सो 9 इज अगेन एडेड विद दिस नंबर. 9 को भी इस नंबर के साथ हम ऐड कर देंगे. फिर रिसीवर साइड पे जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव होगा तो फिर चेकसम के साथ में ये जो हमारा चेकसम था 9, इसके साथ में सारे नंबर्स को ऐड करेंगे. दैट इज 7 + 11 + 12 + 6 + 9. इट इज 45. 45 को फिर से व्रैपसम में हमको रिप्रेजेंट करना है. तो 45 का बाइनरी क्या होता है? 45 का देखो 1 2 4 8 16 32. 32 + 8 is 40 + 4 44.
प्लस 1 45, रिमेनिंग ऑल आर 0. ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 45, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 45. ठीक है, अभी व्रैप सम क्या रहेगा इसका? व्रैप सम के लिए हमको 4 बिट एज इट इज रखने हैं, 1 2 3 4 LSB से ये 4 बिट एज इट इज रखेंगे, रिमेनिंग 2 बिट्स को इसमें ऐड करना है. व्रैप सम इज एडेड इनटू 8, दैट इज 1 0. एडिशन परफॉर्म करते हैं, वी आर गेटिंग 1 1 1 1. 1 1 1 1 इज नथिंग बट 15. ये क्या हो गया 15. तो 15 क्या आया इसका? व्रैप सम इज 15. सो द चेकसम इज 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट. चेकसम इसका क्या रहेगा? 1's कॉम्प्लीमेंट. 1's कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दैट इज 0. ठीक है, दिस 0 इंडिकेट्स दैट देयर इज नो एरर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. समझा? आफ्टर एडिंग द व्रैप सम with the input information, at the end of receiver all the data is added, and with the help of wrap sum method we have to find the wrap sum, means 4 bit will be as it is, remaining 2 bits are added into it, and whatever the sum we are getting that is called as wrap sum. और उसका चेक सम क्या रहेगा? उसका 1's कॉम्प्लीमेंट. अगर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट 0 आता है, if the 1's complement of this wrap sum is 0, indicates there is no error introduced during the transmission. Non-zero checksum indicates the presence of error. अगर non-zero checksum मिलता है तो इसका मीनिंग है कि error introduce हुआ है. Okay, you can check some more example based on this checksum method. If you find any problem, comment me. I will make some more videos for practice session. Okay, thank you.